A very good morning to all students. In the last video of class 12 business studies, we discussed a new topic of financial management, that is a capital structure. Capital structure refers to the composition of the amount of long-term financing. In other words, we can say that the capital structure refers to the mix between owner's fund and borrowed funds, or it represents the proportion of debt capital and equity capital to make up the total capital of the firm. There are basically two components of the capital structure. The first one is a equity, that is a owner shareholder fund, and second one is a debt, which are known as the borrowed fund. In the last video, we already discussed the optimal capital structure. What is the optimal capital structure? The optimal capital structure when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity share, that is the increase in shareholder wealth. यानी एक कैपिटल स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमल की कैटेगरी में तब रखते हैं जब उसमें डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन ऐसा हो जिससे कि इक्विटी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो, शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज हो. आफ्टर दैट वी डिस्कस दिस एग्जाम्पल. with this example we understand the favorable financial leverage. The favorable financial leverage is a condition when rate of return is more than the cost of debt. So एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि we have a example of three companies A, companies B and company C. The total capital of company A, B and C are similar, and EBIT of company A, B and C are similar, but the composition or proportion of debt and equity capital are different among company A, company B and company C, and the rate of interest for company A, company B and C, and the tax rate for the company B and C are similar. Means all the situation, all the external factors was same for all the companies. The total capital, the EBIT, the rate of interest, the tax rate will be same for all the company. But due to the differentiation in its capital structure, we find that the EPS of company A is 15 rupees, the EPS of company B, that is 26.25 rupees, and company C rupees 20. यानी हमने ये देखा कि इसमें सब चीज़ें सिमिलर थी. EBIT भी तीनों कंपनी की इक्वल थी, टोटल कैपिटल तीनों कंपनी के अलग थी, इंटरेस्ट का रेट भी तीनों के लिए सेम था, टैक्स का रेट भी तीनों के लिए सेम था. इसके बावजूद भी तीनों का EPS अलग अलग आया, दैट इज़ अ अर्निंग पर शेयर. वाई इट इज़ डिफरेंट? ड्यू टू द कैपिटल स्ट्रक्चर. जो कैपिटल स्ट्रक्चर था वो कंपनी ए का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था उसमें 10 लाख रुपीज़ टोटली इक्विटी से रिसीव किए गए थे. कंपनी बी के केस में 4 लाख रुपीज़ फ्रॉम द इक्विटी एंड 6 लाख रुपीज़ फ्रॉम द डेप्ट. And in case of company C, 6 lakh rupees was taken by the shares and 4 lakh rupees was taken by the loan. So due to the change in their composition in capital structure, the proportion of capital, owned capital and debt capital are different for the company A, company B and C. That's why the EPS for the company A, B and C are different. तो इसीलिए हमने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर. देखिए इसमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ है. हमने अभी बात की कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ सिचुएशन वेयर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज अ इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ. यानी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जहाँ पे इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़े, इन शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज हो. तो EPS कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा है? बी. सो फ्रॉम द एमंग कंपनीज A, B and C, द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी B को हम कह सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज ROI. ROI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In this we find that the EBIT upon total investment into 100. What is the formula of ROI? ROI means return on investment. The earning before interest and tax divided by total investment. So in this question we find that
कि तीनों कंपनी में कंपनी ए हो, बी हो, सी हो, तीनों के केस में हमारा EBIT इज़ 3 लाख एंड टोटल इन्वेस्ट 10 लाख, सो दिस इज 30% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% विच इज़ लेस देन द ROI. सो वी फाइंड दैट, हमने ये प्राप्त किया कि ये तीनों फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, जहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, ROI जो है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर है. ये फेवरेबल था. इन दिस सिचुएशन ROI इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट. ओके. Thus, from the above example, it is clear that shareholder of the company B receive higher APS than the shareholder of companies A and C due to the higher debt in the total capital of the company B. Therefore, the optimal capital structure is that of the company B. So, एक बात नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, when ROI is greater than interest, rate of interest, okay, when ROI means return on investment is greater than the interest, in this situation we preferred debt capital. यानी हम उस सिचुएशन में हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वही होगा जहाँ पे डेप्ट कैपिटल का फॉर्म ज़्यादा होगा. व्हाट इज ROI? ROI मीन्स EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. ठीक. और यहाँ पर ये बात आपको माइंड करने की ज़रूरत है, जो नोट डाउन करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने तीनों कंपनी में ये देखा कि तीनों कंपनी में डेप्ट कैपिटल सबसे ज़्यादा किसके पास थी? कंपनी बी. और ये ROI ज़्यादा है और 6 लाख रुपीज़ लोन भी ज़्यादा है बी के पास. सो इस सिचुएशन में उसका EPS भी सबसे ज़्यादा है. देख रहे हैं, बी कंपनी का EPS ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इट इज़ अ सिचुएशन वेयर ROI, it means return on investment is greater than the interest. So in this situation कैपिटल स्ट्रक्चर उसका अच्छा होगा, EPS उसका सबसे ज़्यादा आएगा जिसका डेप्ट कैपिटल ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे कम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. ओके. ये बात आपने दिमाग में रख लीजिए. ये चीज़ प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि फेवरेबल सिचुएशन में, फेवरेबल सिचुएशन मीन्स व्हेन the rate of return is more than the cost of debt. In this situation we preferred debt capital as compared to the owned capital. Okay. And how we find the return on investment? The earning before interest and tax divided by total investment. The next topic is related to this concept, that is trading on equity. Is a very important topic, trading on equity. The use of debt along with equity increases earning per share. This use of fixed financial charge, that is interest, increase the profit earned by the shareholder. This concept is known as trading on equity. What is trading on equity? Trading on equity का मतलब ये होता है जितना ज़्यादा हम डेप्ट को यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है. बिकॉज ऑफ trading on equity is a situation where debt capital is more than the equity capital. What is trading on equity? Trading on equity is a situation where debt capital is more than the owned capital. Please note down this line. What is the trading on equity? Last time I will repeat it. Trading on equity is a situation where debt capital is more than the owned capital. यानी कि ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी इक्विटी कैपिटल कम होती है और बोरोड कैपिटल ज़्यादा होती है. एक बात तो ये होगी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल. व्हेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल, फेवरेबल मीन्स कब हमें डेप्ट कैपिटल ज़्यादा रखनी चाहिए, कब डेप्ट कैपिटल कम रखनी चाहिए. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल. इट मीन्स डेप्ट कैपिटल इज मोर देन द ओन्ड कैपिटल where the return on investment is greater than the interest rate. ये मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ ना, ये all the lines is very important for you to solve the practical problem related to the financial management. When we solve the case studies, when we take a decision regarding the investment, so this kind of lines will help to you
solve the different kinds of questions. So trading on equity is a situation where debt capital is a more than the equity capital, the one part. Second is trading on equity is favorable when return on investment is greater than the interest rate on debt. ओके, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऐसी सिचुएशन है जहां हमारी डेब्ट कैपिटल ज़्यादा होती है, इक्विटी कैपिटल कम होती है, और ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें तभी प्रेफर्ड करते हैं या हम अपनी डेब्ट कैपिटल तभी ज़्यादा रखते हैं जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है. आते हैं दूसरे केस पे, द केस ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स the above example have shown the favorable effect because the rate of interest paid on the debt is lower than the return on investment. इससे पहले हम लोगों ने देखा जो भी केसेस था वो फेवरेबल क्यों था, बिकॉज ऑफ वहाँ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो हायर था इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट रेट. हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30% whereas the tax rate is 15%. That's why this situation is called favorable financial leverage, and in case of favorable financial leverage we followed the trading on equity. Trading on equity is a situation where the debt capital is more than the equity capital. It means we prefer to debt capital as compared to the own capital. Let's we take the another example of unfavorable financial leverage. The unfavorable financial leverage is a situation whereas you find that the return on investment is lower than the interest rate. It means आपको रिटर्न कम मिलेगा और आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा. तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, we find that the EBIT for company A, company B and company C, that is 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh, and this is called the 10% of the capital, and the interest we paid the 15% of 6 lakh, that is 15% 6 lakh for company A only equity, company B debt plus equity, company C total amount brought for the. So we find that कंपनी A के पास तो कोई डेप्ट नहीं है, तो उसने कोई डेप्ट नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया. बट इन केस ऑफ कंपनी B वी फाइंड दैट उसके पास 6 लाख रुपीज़ क्या है कि डेप्ट कैपिटल है, तो उसने 90,000 का इंटरेस्ट पे किया. उसी तरह से ओके, आई होप कि यू विल गेट कंफ्यूज बिफोर सॉल्विंग दिस केस. फर्स्ट ऑफ यू आई विल इन्फॉर्म टू यू दैट टेक अनदर केस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. सारी चीज़ें सेम है. सारी चीज़ें सेम होने का मतलब जो मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था वो सब कुछ सेम है, बट यहाँ चेंज हो जाएगा आपकी EBIT. इन द लास्ट केस वी फाइंड दैट कि आवर EBIT इज 3 लाख, बट इन दिस सिचुएशन वी फाइंड दैट द EBIT इज 1 लाख. सो पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आपकी इन्फॉर्मेशंस क्या क्या है. देखिए, ये था फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज जहाँ पे टोटल कैपिटल भी 6 लाख, टोटल कैपिटल 10 लाख है फॉर कंपनी A, कंपनी B एंड कंपनी C. शेयर कैपिटल इनका प्रोपोर्शन भी सही है, सेम वही है. चेंज यहाँ पर हो गया है, 3 लाख की जगह कंपनी के पास 1 लाख रुपए की EBIT है, बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम. सो कंपनी B टेक 6 lakh rupees from the loan and company C take the 4 lakh rupees from the loan. So company B paid 6 lakh multiplied by 15%, that is a 90,000 as an interest, whereas the company C paid 4 lakh multiplied by 15%, that is the 60,000 as an interest. So we find that in today's question is that कि तीनों कंपनी की EBIT 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं है, अनचेंज है, जस्ट सेम एज अ प्रीवियस सिचुएशन. बट यहाँ चेंज क्या हो गया है कि हमारी EBIT 1 लाख हो गई बिकॉज इट इज़ अ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, कम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. सो इन द केस नंबर 1 वी डिस्कस्ड where the ROI is greater than the interest, but in this situation we find that company earned only 1 lakh rupees as a EBIT. 1 lakh rupees as EBIT means कि कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही है और कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10 लाख रुपए का. सो यू फाइंड दैट कंपनी का रिटर्न ROI इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%, बल्कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 15%.
So it is a situation where a debt cost, yeah, interest rate is higher than the return on investment. It is called the unfavorable financial leverage. So in this situation, first of all, we take the EPS. So first of all, the EBIT for company A 1 lakh, company B 1 lakh, and company C 1 lakh. Second is interest. Company A does not take any kind of debt capital. For company B take the 6 lakh rupees from the loan capital. So it paid the 90,000 as interest, whereas the company C paid 60,000 as interest. So the earning after tax, earning after interest, that is for company A 1 lakh, company B is 10,000, and company C is a 40,000. So the tax is, for company A, tax rate is similar as per the previous situation. The tax rate for company A 50,000, company B 5,000, and company C 20,000. Because of earning after interest for company A, that is 1 lakh, company B 10,000, and company C is 40,000. So the 50% of 1 lakh, that is 50,000, 10,000 50%, that is 5,000, and 40,000 is 20%, that is 20,000. So earning after tax is 50,000, 5,000, 20,000, and earning per share, in the previous situation the same things are, all the things are same, but the earning after tax is different for the different companies. Company A का जो earning after tax है, that is 50,000 है, company B 5,000 है, company C 20,000. यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद द अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो after that we find out the earning per share. The earning per share for company A, that is 5 rupees, company B 1.25 rupees, and company C 3.33. So at the last I want to say you what I want to say you. Please listen carefully. There are basically two situations related to the financial leverage. The first situation, favorable financial leverage, and second is the unfavorable financial leverage. Favorable financial leverage is a situation where ROI is greater than the interest rate. So in this situation, we followed the trading on equity. Trading on equity is a situation where the debt capital is higher than the equity capital. यानी जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट, तो हम अपनी डेप्ट कैपिटल को प्रेफर करेंगे. इज दैट क्लियर? एक बात क्लियर. दूसरी आई unfavorable financial leverage. The unfavorable financial leverage is a situation where interest rate is greater than the return on investment. So in this situation, we preferred owner's capital as compared to the borrowed capital. So in this situation, we do not follow the trading on equity. We follow the ओन कैपिटल एज कम्पेयर टू द बोरोड कैपिटल. यानी इस सिचुएशन में ओनर्स कैपिटल ज़्यादा लेंगे. अब आप इसी में देखिए, कंपनी ए का एपीएस सबसे ज़्यादा आया है, कंपनी सी का आया है, उसके बाद कंपनी सी का आया. बिकॉज ऑफ ये अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की सिचुएशन है. तो यहाँ पर अनफेवरेबल की सिचुएशन में, यानी जब कंपनी की ईबीआईटी ज़्यादा नहीं होती, या कह सकते हो आरओआई ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ कंपनी को ओनर्स फंड से ही काम करना चाहिए, बोरोड पे मूव नहीं करना चाहिए. बोरोड फंड पे हमें तभी मूव करना चाहिए जब हमारे पास सफिशिएंट आरओआई अवेलेबल हो. द आरओआई इज़ ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट. सो आई होप कि ये दोनों सिचुएशन आपको क्लियर हुई होगी कि हमें कब बोरोड फंड फॉलो करना चाहिए और कब ओन फंड को फॉलो करना चाहिए. इट मीन्स हमें कब डेब्ट फाइनेंसिंग करनी चाहिए और कब इक्विटी फाइनेंसिंग करनी चाहिए. इज दैट क्लियर? एंड दिस डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फाइनेंसिंग डिसीजन, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो दिस डिसीजन इज टोटली रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म, and to make a total capital of the firm. So it is very important कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जहां कंपनी का ईपीएस मैक्सिमाइज हो, कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज हो, एज वेल एज उनकी वेल्थ भी इंक्रीज हो. सो वी कैन से दैट एट द एंड basically there are two situations related to the financial leverage: favorable financial leverage and unfavorable financial leverage. Okay, so we move to the next topic. The next topic is factor affecting capital structure. What are the factors affecting capital structure?
You know, when we take the decision related to the investment, when we take the decision related to the financing, and when we take the decision related to the dividend, so there are various kind of factors which influence the such kind of decision. So as well as some of the important factors which affect the capital structure, which are as follows. The first one is cost of debt. You know very well, when the cost of debt is higher, so in this situation company follow the owner's capital, and when the cost of debt is lower, so in this situation company follow the borrowed fund. The next one is cost of equity. When a company increases debt, the financial risk faced by the equity shareholder increases. Thus, debt can be used up to a limit. Beyond that point, cost of equity may go up and share prices may decreases. So, cost of equity is very important part to determine the capital structure, because you know very well कि जब हम कंपनी में डेप्ट कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, और जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क भी बढ़ जाता है. तो रिस्क बढ़ने से यू नो वेरी वेल कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो भी बढ़ जाता है. सो और शेयर की जो प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है. सो आई वॉन्ट टू से यू कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमाइन द मैक्सिमम लेवल ऑफ द यूजेस ऑफ डेप्ट कैपिटल. यानी इक्विटी का जो कॉस्ट है वो हमें कहीं ना कहीं इस बात को डायरेक्ट करता है कि हमें कितना डेप्ट लेकर काम करना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. व्हाट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इट इज़ अ वेरी पॉपुलर रेशियो. इन प्रैक्टिकली वे दिस टॉपिक्स विल बी स्टडीड इन द पार्ट बी ऑफ अकाउंटेंसी व्हेन वी सॉल्व द चैप्टर रेशियो एनालिसिस ऑफ द पार्ट बी ऑफ द अकाउंटेंसी. सो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना सिखाया जाएगा. So what is the interest coverage ratio? The interest coverage ratio refers to the number of times earning before interest and tax cover the interest obligation. Means अगर मैं बताऊं कि कंपनी अगर 1 लाख रुपए कमा रही है और कंपनी को पर ईयर 10,000 रुपीज़ क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है. यानी कंपनी 1 लाख रुपए कमाई, उस 1 लाख में उसे 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना है. तो कंपनी कितने बार टैक्सेस दे सकती है, इंटरेस्ट दे सकती है? 10 टाइम्स. वंस अगेन आई वांट टू रिपीट टू यू व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि कंपनी अपने अर्निंग में से कितनी बार इंटरेस्ट दे सकती है, यानी उसका इंटरेस्ट का कवर क्या है. कवर मीन्स हाउ मेनी टाइम्स कंपनी पे द इंटरेस्ट फ्रॉम द करेंट ईयर प्रॉफिट. इफ कंपनी अर्न 1 lakh rupees annually and it paid 10,000 as an interest, so company paid 10 times interest to the debenture holders. So it is also very important for you because of कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना अच्छा होता है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होता है, उतना ही क्या इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही हमारा डेप्ट कैपिटल लेने का विचार बन सकता है. इट मीन्स हमारा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं, इसका मतलब ही तो यही है कि हम डेप्ट कैपिटल को बोरो कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो. व्हाट इज़ अ डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो? It refers to the ratio that takes care of deficiency in ICR. A higher debt service coverage ratio indicates better ability of the company to meet its cash commitment and borrow more fund. यानी डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में ये बताता है कि हम जब लोन से पैसा ले रहे हैं तो लोन पे हमें 2 चीज़ें पे करनी पड़ती है. When we take the loan from any investors, any borrower, so in this situation we paid the amount regularly to the borrower. The first one is the interest and second was the annual installment, the principal value. आप you know very well अगर हम लोन लेते हैं तो लोन को हम या एक पर्टिकुलर मंथ के बाद या पर्टिकुलर डे के बाद उसको रिफंड करते हैं और उस पर एनुअली इंटरेस्ट भी पे करते हैं. सो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट एज वेल एज अपनी इंस्टॉलमेंट को देने में कहाँ तक सक्सेसफुल है. यानी कैश कमिटमेंट्स करना हो या ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करना हो, कंपनी कितनी कैपेबल है. सो इंटरेस्ट डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी डेप्ट लेने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं. सो थ्योरेटिकल वे में अगर आप ये समझ लीजिए
कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये बताता है कि कंपनी अपनी करंट ईयर की प्रॉफिट से कितनी बार इंटरेस्ट दे सकती है। जितना ज़्यादा ICR होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी बोरो मनी ले सकती है, मनी बोरो कर सकती है। एंड डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में बताता है कि कंपनी रेगुलर कैश पेमेंट्स करना हो या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना हो टू द बोरोवर्स, तो वो कितने कैपेबल है। सो इसकी हेल्प से हमें डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो पता चलता है, यानी डेब्ट कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी डिटरमाइंड ड्यू टू द DSCR. सो हाई DSCR indicates the takes more and more borrow money, and lower DSCR refers to the lower borrower money from the creditors. So next is the cash flow position. You know very well, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने बात किया है कि कैश फ्लो पोजीशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोगों ने अभी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की सिचुएशन पढ़ी है। द फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज इज अ सिचुएशन वेयर ROI इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट, सो वी प्रेफर्ड द डेब्ट कैपिटल, एंड व्हेन ROI इज लोअर देन द इंटरेस्ट रेट, सो वी प्रेफर्ड द ओनर्स कैपिटल. The tax rate, you know very well, when the tax rate is high, so in this situation we prefer the डेप्ट कैपिटल. वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा डेप्ट लेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा. सो ये बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताई भी है आपको कि कंपनी जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी उसे टैक्स का बेनिफिट भी उतना ज़्यादा मिलेगा. इट मीन्स टैक्स उसे कम देना पड़ेगा, ये कह सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ अ फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट द एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ द फाइनेंस, यानी जब हम शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो दे आर वेरियस काइंड ऑफ cost beared by the company, like the underwriting commission, brokerage, advertisement expenses, and cost of issue. So in this situation there are various kind of flotation costs incurred on the issue of the securities, shares, bonds and debenture. So अगर कंपनी को किसी पैसे को अरेंज करने में, यानी ओनर्स फंड या बोरोड फंड में, जहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि दिस कॉस्ट इज़ यूजलेस and this cost increase the additional cost of the company. So company generally avoid the flotation cost at the time of issue of share and debenture. Next is of operating cost. Operating cost of the company, because you know very well, अगर कंपनी के पास ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, ऑलरेडी वो ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर कर रही होगी, सो वहाँ पे वो इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल नहीं होगी. जैसे मैं ही आपसे कहूँ कि सपोज़ आप घर में कमाते हैं और आपको घर चलाने में दिक्कत आ रही है, तो आप बोरो मनी कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उस पर आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके लिए बढ़ जाएगा. फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर है कि यू नो वेरी वेल, कंपनी के हाथ में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. जैसे नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ कंट्रोल कंसिडरेशन. नेक्स्ट इज़ अ स्टॉक मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. द एबव मेंशनाइज्ड पॉइंट नंबर 5 to point number 8 already discussed in for factor affecting the financial decision. जब हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ रहे थे, तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ कवर अप किया होगा. बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ फाइनेंसिंग, हाउ मच मनी बोरो और ओन टू मेक अ इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर. सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी ईजी वे में हम अपने डेब्ट कैपिटल को बढ़ा सकें, इक्विटी कैपिटल को कम कर सकें, या इक्विटी कैपिटल को बढ़ा सकें. वैसे ही कंट्रोल कंसिडरेशन है. इफ़ कंपनी वांट्स टू कंट्रोल ओवर द बिजनेस, सो इन दिस सिचुएशन वो ज़्यादा ओनर्स कैपिटल को ही प्रेफर करेगी, क्योंकि यू नो वेरी वेल, जब डेब्ट कैपिटल ज़्यादा हो जाता है कंपनी में, तो वहाँ कंपनी में शेयर होल्डर्स की जगह बोरोवर्स की चलने लगती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल, कंपनी में जिसका जितना पैसा लगा है, कंट्रोल भी उतना उसका ज़्यादा होगा. हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि हम जब भी किसी एक्सटर्नल पार्टी से पैसा लेते हैं, तो उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं करते या उन्हें अपने ओनर्स में इंक्लूड नहीं करते. बट यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिकल थिंग्स आर डिफरेंट्स, बिकॉज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी इज़ इन्वेस्टमेंट. जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी से कंपनी का बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा. स्टॉक मार्केट कंडीशन, you know very well कि when a company paid the high rate of dividend, so in this situation the market price of the equity share will be increases.
सो स्टॉक मार्केट कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी को डिवेंचर पे कितना पैसा मिल रहा है और इक्विटी पे। अगर कंपनी ने लास्ट फ्यू ईयर से इक्विटी शेयर पे अच्छा रिटर्न दिया है तो इक्विटी शेयर का प्राइस होगा 10 रुपये, लेकिन लोग उसको 15 से 20 रुपये देने के लिए तैयार होंगे। सो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी इस बात को डिसाइड करती है कि कंपनी को कहाँ से फंड लेना चाहिए, ओनर्स कैपिटल से लेना चाहिए कि बोरोड फंड से लेना चाहिए। एज वेल एज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लॉज एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द डिफरेंट कंपनीज़ कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो किसी भी तरह से कंपनी के शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ना कि उनके इंटरेस्ट को वायलेट करे। इंटरेस्ट मीन्स कि कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मिनिमम रिस्क पे रखना चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ इन हैपनिंग थिंग्स वो ईजिली अपने शेयर होल्डर्स को और डिबेंचर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर सके। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो वी डिस्कस the two important part. The first one is the favorable financial leverage and the unfavorable financial leverage, as well as we discuss the factor affecting capital structure. So I hope today we completed all the doubts very easily. Apart from this, if you have any kind of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.